Hey guys, this is Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I will solve some question of addition and these are starting here and we will start one by one. So the first question is, this is especially for you small kids. ये आपके छोटे बच्चे के लिए है. You can teach him bilingually. आप उसे द्विभाषी तरीके से पढ़ा सकते हैं. And I know it well. और मैं ये भली बात जानता हूं दैट कि द स्टूडेंट नाउ इट इज आजकल के बच्चे आर स्टडिंग मोस्टली मुख्यतः पढ़ रहे हैं इन इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी भाषा में. सो हाउ दे कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन इंग्लिश एंड हाउ दे कैन लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. वे इंग्लिश में कैसे प्रश्नों को हल करें और कैसे वो इंग्लिश भाषा सीखें थ्रू दिस प्रोसेस बाय सॉल्विंग द मैथमेटिकल कैलकुलेशन. गणितीय कैलकुलेशन गणनाओं को भी हल करके. सो लेट अस स्टार्ट द क्लास. व्हाट विल बी द रिजल्ट. क्या परिणाम होगा. व्हाट विल बी द रिजल्ट. 1 + 1. व्हाट विल बी द रिजल्ट. एक और एक का जोड़ क्या होगा. व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ 1 + 1. एक और एक का जोड़ क्या होगा. व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ 1 + 1. सो द आंसर मस्ट बी 2. 2 इज द राइट आंसर. So we are seeing here, हम यहाँ देख रहे हैं that कि this is the right answer. 2 is the correct answer. Okay, we are going on the next question. हम दूसरे प्रश्न में जा रहे हैं. What is that? So here the next question is, यहाँ अगला प्रश्न है which is given based on what we should say multiplication. That is given on the basis of multiplication, or you can say also, और ये भी आप कह सकते हैं कि that is based on addition. So in 5 में 5 is added, 5 जोड़ा गया है तो ये 10 हो गया. 5 में 5 जोड़ा गया तो ये 10 हो गया. फिर इसमें 5 जोड़ दिया गया तो ये 15 हो गया. So the answer must be 15. So 15 is the right answer. So next question is, we are going to solve the next question. The next question is here, how we can get 14. हम कैसे 14 प्राप्त करेंगे. हम कैसे 14 प्राप्त करेंगे. Why we will get 14. How we will get 14. हम कैसे 14 प्राप्त करेंगे. When we will subtract something. जब हम कुछ घटाएंगे from 18. 18 से जब हम कभी कुछ घटाएंगे तो 14 कैसे प्राप्त करेंगे. तो हम कह सकते हैं इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इसको क्या करें. सॉरी, देयर इज नो ओके सॉल्व दो. अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि 18 को उधर ले जाएं या इसको इधर लाएं और उसको उधर कर दें. तो 18 - 18 - 14 is equal to question mark. So what will be the result. 18 - 14 का रिजल्ट क्या होगा. क्वेश्चन मार्क में वही आंसर होगा. So that will be the answer. 18 - 14. So the right answer will be what. 18 - 14 is 4. 4 is the resultant of question mark. So in this way we can say that this is the right answer. So we are going to solve the next question. So we can say here 4 is the right answer. See, the 4 is added here. The 4 is added here. यहाँ जोड़ दिया गया है add, अर्थात its position is shown to you. इसकी स्थिति आपको दिखा दी गई. और we can say that if 18 - 4 is equal to 14, अर्थात 18 से 4 घटा दिया गया तो 14 बचा. So in this way you can learn English language even. इस तरीके से आप अंग्रेजी भाषा भी सीख सकते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, 4 - 1. व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ 4 - 1. व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ 4 - 1. सो द आंसर इज 3. 3 इज द राइट आंसर. सो वी कैन से दैट 3 इज द रिजल्टेंट ऑफ 4 - 1. 4 - 1 का परिणामी क्या है. 3 है. सो वी कैन से दैट 3 इज द राइट रिजल्ट ऑफ 4 - 3. 4 - 1 सॉरी 4 - 1 का सही उत्तर क्या है. आंसर क्या है.
that is 3. So we are going to solve the next question. The next question is given here. 15 minus 9. 15 minus 9 is given here. 15 numbers will be subtracted by 9. So what will be the result? So we can say that if this is 10, then remaining will be what? 5, but it is 9, so 1 will be added. एक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात in Hindi you can say if we are subtracting, यदि हम घटा रहे हैं from 15 15 से 9, so we can say that if we change 9 to 10, यदि हम 9 को बदल कर 10 लिख दें तो 5 बचेगा, लेकिन एक घटाए थे, एक बढ़ा दिए थे, तो इसमें इस जोड़ना पड़ेगा, अर्थात 6 आंसर होगा. What will the right answer? 6 will be the right answer. 6 will be the right answer. So the answer will be 6. So 6 is the right answer. Let us go on the next question. The next question is 14 subtracted by question mark is equal to 12. So we can solve this through this process. How we can solve? We can solve this through this process. हम इस पद्धति से इसको हल कर सकते हैं. We can solve it very easily. हम इसे बहुत सरलता से हल कर सकते हैं. Come with me and solve the question with me. और आइए मेरे साथ और प्रश्न को हल करिए मेरे साथ. See, this is 14. देखो यह 14 है और इसको हम क्या कर सकते हैं? We can change its position. So we can say that 14 minus 12. if इधर से a प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा. 12 इक्वल टू a माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा. तो कह सकते हैं 14 minus 12 is equal to 2. 2 is the right answer. So right answer is given here. So next question is given here. Okay, we are going to solve the next question. The next question is, sorry, where it is gone? We solved that question? Okay, it may be. We forget that. Leave this. Next question is here. 12 minus 7. 12 minus 7. 12 से 7 घटाया गया है. तो 12 में से 7 घटाया जाता है, कितना आता है? कितना आता है बच्चों? 12 में से 7 घटाने पर तो आता है कितना? 5. तो 5 यहाँ पे आंसर हो जाएगा. सो द आंसर इज 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई थिंक ऑफ अ नंबर. मैं एक संख्या के बारे में सोचता हूं. आई थिंक ऑफ अ नंबर. मैं एक संख्या के बारे में सोचता हूं. आई थिंक ऑफ अ नंबर. मैं एक संख्या के बारे में सोचता हूं. आई मतलब मैं, थिंक मतलब सोचता हूं, ऑफ अ नंबर एक संख्या के बारे में. आई सब्सट्रैक्ट 4 और मैं उसमें से 4 घटा देता हूं. एंड 8 6 और 6 जोड़ देता हूं. एंड माई आंसर इज 7 और मेरा उत्तर कितना होता है? 7. व्हाट इज माई नंबर? तो क्या मेरा संख्या है? तो मान लेते हैं माई नंबर इज x. अब यही जो संख्या है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं. अब इफ आई सब्सट्रैक्ट 4, यदि इसमें से 4 घटा दिया, फिर क्या दिया? एंड ऐड 6 और 6 जोड़ दिया. 6 जोड़ दिया. एंड माई नंबर इज 7. तो आता क्या है? 7. क्या आता है? 7. ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर? तो इसका उत्तर क्या होगा? सो सॉल्व इट. x माइनस ए प्लस जोड़ेंगे तो माइनस +2 हो जाएगा इक्वल टू 7. सो x इज इक्वल टू 7 minus 2 equal to 5. So 5 will be the answer. Answer is given here. So right answer is 5. So in this way we have solved this question. इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल किया. We are going on the next question. हम अगले प्रश्न में जा रहे हैं, which is going to come in front of you, जो आपके सामने आने जा रहा है. This is the series of addition. यह सीरीज है एडिशन की, यह श्रृंखला है एडिशन की. अब देखते हैं कितना जोड़ा गया है. 3 में कितना जोड़ा गया कि 7 हो गया. 3 में कितना जोड़ा गया कि 7 हो गया. सी हियर 4 इज एडेड इन 3 तो 7. और 7 कितना जोड़ा गया? 11 हो गया. 4 is added in 7, so it is 11. It means the next number
इसका मतलब यह है कि अगली संख्या जो है दैट मस्ट बी आल्सो कम फ्रॉम एडिशन ऑफ 11 एंड 4। जो आगे अगली संख्या आएगी वो 11 और 4 के जोड़ से ही आएगी। तो क्या हो जाएगी? 11 4 15, 15 इट मीन्स 15 विल बी द राइट आंसर। और 15 के बाद भी जो संख्या आएगी वो भी 4 के जोड़ से आएगी, तो हो जाएगी 19। सो द आंसर इज हियर 15 minus 19. So 15 minus 19 is the right answer. We are going to solve the next question. The next question is here. Question plus 4 equal to 10. Question mark plus 4 equal to 10. It means question is remain here. Question must be remain here. Question को यहाँ रहना चाहिए. So question is here and the remaining will be what will be the remaining is equal to 10 minus 4. Because अगर यहाँ से प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों. तो आंसर विल बी 6. व्हाट विल बी द आंसर? उत्तर क्या होगा? 10 minus 4 is equal to 6. 10 में से 4 जाए तो 6. So answer will be 6. Next question is going to come in front of you. This is here, but before that let me delete it. This is here. What will be the result? And we can say that what must be the result? 5 plus 2. 5 plus 2. And what is here? What is here? We can say 5 plus 2 7. It means what is? Oh, I see. Here greater and less का number दिया है. See, answer is here. Greater or less. This is greater. This is less. So if this number is greater, if this number is greater, if this number adding, after adding, जोड़ने के बाद, if this number, यह संख्या यदि बड़ी है, so मुंह इसका open मुख रहेगा इसकी तरफ, open mouth will be here, and if this is number greater, then open mouth will be here. So I think it is just 7 and this is 8. So answer must be this. So where it is written? Here. Here is the right answer. So we reach to the right answer. We are going to solve the next question. हम अगला प्रश्न हल करने जा रहे हैं. So let us see the next question. The next question is here, and we can say that which is greater, which is bigger number. So you can imagine that 8 is added here, 5 is added here, and 9 is added here, 6 is added here. It means this is greater than this because it is just 8, it is 9, it is just 5, it is 6. यह सिर्फ 5 है, यह 6 है, यह सिर्फ 8 है, यह 9 है. इसका मतलब ये वाला बड़ा होगा. So what will be the answer? Answer will be this. So answer is here. So in this way we have solved several questions, and I think these all questions, और मैं सोचता हूँ these all questions, ये सभी प्रश्न are very useful, बहुत ही लाभकारी हैं for those students, उन विद्यार्थियों के लिए those are trying to learn in English medium, जो इंग्लिश भाषा के रूप में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं. एंड दीज प्रोसेस ऑफ टीचिंग, और यह तरीका पढ़ाने का विल बी बेटर फॉर देम इन द बिगिनिंग, और प्रारंभ में यह तरीका उनके लिए अच्छा होगा. एंड आफ्टर लेट सम टाइम, और कुछ समय के बाद, व्हेन दे विल बी हैबिचुअल, जब वो अभ्यस्त हो जाएंगे, देन दे कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द टीचर इज सेइंग. तब वो सरलता से समझ सकते हैं कि क्या वास्तव में टीचर कह रहे हैं. सो विद दीज वर्ड्स आई एम गोइंग टू एंड माई वीडियोज. इन शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ. एंड प्लीज वॉच माई वीडियोज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज, एंड शेयर दीज ऑल वीडियोज, एंड लेट योर siblings or your kids to watch these videos so that they can take benefit of learning English language, ताकि वे अंग्रेजी भाषा को सीखने का लाभ उठा सकें. So with these words, thank you and thank you very much.